سبھی کو پتا ہے کہ اسرار احمد کو اس دنیا سے گئے ہوئے 30 سے 35 سال ہو گئے. کیا اس کو اس بات کی جانکاری تھی؟ جو بات وہ ابھی رکھیں گے. اب پوری طریقے سے سنتے پہلے اسرار احمد صاحب کی بات کو. واللہ فیکٹ. اس نیو ورلڈ آرڈر کو اگر کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے تو صرف یہ خطہ، ایران، افغانستان اور پاکستان. اور اگر یہ ہو گیا تو روسی ترکستان کا علاقہ بھی، اس میں بھی کچھ فنڈامنٹلسٹ تحریکیں اور فکر جو ہے پہنچ چکا ہے. لیکن ان کی چونکہ برین واشنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہذا انہیں وقت لگے گا. ابھی آسان کام نہیں ہے ان کا. مجھے بتایا گیا، میں تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، بی بی سی ٹیلی ویژن نے میرے کسی خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اے ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ. میری اسی تجویز کو کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بلاک بننا چاہیے. انہوں نے کہا اٹس اے ریڈ سگنل فار دی ویسٹ، ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ. یہاں کے لوگوں کے کانوں پہ جوں نہ ہل رہی ہو، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کیا میری حیثیت ہے. میری کوئی جماعت ہے، مٹھی بھر لوگوں کی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے میری. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی جو اہمیت ہے وہ ان کو معلوم ہے. ایران کا گھیراؤ ہو رہا ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ہے. کسی بھی روز آپ سنیں گے کہ کوئی سٹرائک ہوا ہے اور اس کی جو بھی ایٹمک انسٹالیشنز ہیں وہ تو پہلے بات میں ختم کر دیں گے. اوپنلی انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر $20 کروڑ کی رقم جو ہے، اوپنلی، کوئی ڈر نہیں ہے اب انہیں. بائی پولر ورلڈ تو ہے نہیں، یونی پولر ہے. ہم ہی ہیں. آئی ایم دی monarch of all I survey. تو سچ بولنے میں کیا برائی ہے؟ اب ہنری کسنجر صاحب نے بھی سچ بول دیا کہ سن 71 میں ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان سپلٹ ہو جائے. پہلے نہیں کہہ سکتے تھے. جب تک روس موجود تھا، USSR انٹیکٹ تھا، اس وقت تو اندیشہ تھا کہ پاکستانی ناراض ہو کر ادھر نہ رخ کر لے گئے. اب کیا ہے؟ سیاں بھائی کوتوال اب ڈر کا آئے گا. اسی طرح کھلم کھلا $20 کروڑ ایران کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے. اور وہ باتیں جو کبھی اسلم بیگ نے کہی تھی، وہ اصل میں اسلم بیگ صاحب کی نہیں تھی، وہ بھی کسی ایک ادارے نے، میں اب اس میں وقت نہیں لگا سکتا، انہیں مہیا کی تھی معلومات، جس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا، صحیح کہا تھا کہ اس وقت کا ٹارگٹ امیڈیٹ تو عراق ہے، جو کچھ ہو رہا ہے. سیکنڈ ٹارگٹ از ایران اینڈ تھرڈ از پاکستان. لیکن پاکستان میں اگر سیدھی انگلیوں نکل آئے جو وہ چاہتے ہیں تو ٹیڑھی انگلیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سیدھی انگلیاں نکل جائیں. ٹیڑھی انگلی تو تب استعمال ہوتی ہے جب سیدھی انگلیوں کوئی شے نکلتا نہ ہو. اور مجھے تو سخت ایک دفعہ تو کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، اگر یہ شیعہ سنی مسئلے کی مفاہمت کی کوئی صورت نہ بن سکی تو کٹر سنی حنفی مولویوں کی حکومت افغانستان میں اور کٹر شیعہ جعفری فقہ ایران میں، اس سے بڑا ٹکراؤ کوئی ہوگا؟ امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ اور پاکستان میں تو ہم اسلامی انقلاب سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بحالات موجودہ، جو بھی حالات اس وقت ہیں. وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے قدم اٹھانے. نمبر 1، فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ. اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے. تو اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے. یہ تو خیر 1000 بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں. یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہودی، وہ مر جائیں. لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ، اب ان کو ختم کرو. نمبر 2، انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصی کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں. یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصی میں گیا تھا، اور اس نے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے، بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے، وہ اینٹیں لے کر، روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اب بنائیں گے. لہذا اب جو ہے کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آ گئے. کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا نا. جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا. کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے. تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن 2 امکانات ہیں. امکان نمبر 1 کیا ہے؟
अभी आलम इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में खटक रहा है। मैं खटकता हूं दिले यस्सा में कांटे की तरह। अगरचे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक एक करके इनके हिस्से बखरे करके दिया पाचा करो। अभी वो ब्लॉक कौन सा है? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं, ये एक सॉलिड ब्लॉक। ये आजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, अरबी गए, ये नोट कर लीजिए। इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी थी, मोहम्मद उनमें से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा बुलंद मिला जिनको मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें बताएंगे किसी और को ले आएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देखते रह जाएंगे बिल्लियों की तरह, और वो बंदर चचा साम बंदर जो है सारी रोटी खुद खाएगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। रास्ता दूसरा है, भारत के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करो, उन्हें भी होश आ जाए। कुछ आ चुका है, नजर आ चुका है। कश्मीर के हुर्रियत पसंदों ने उनके होश ठिकाने कर दिए हैं, लेकिन यह कि बहरहाल बाहमी गुफ्तगू, और अगर कोई सालिसी किसी दर्जे में, कोई गुड ऑफिसेस, कोई भी हमें जरिए दरकार है, तो जो पड़ोसी ममालिक है ईरान और चीन, इनकी मदद हासिल करके कोई मुफाहमत जो है लोकल तय की जाए। यूनाइटेड नेशंस जो अमेरिका का जर खरीद है, उसका खानाजाद है, और अमेरिका के जो यहूदियों का असीर है, उसके जरिए से कोई खैर नहीं आ सकता। और आखिरी मुतालबा कि चाहे सारे अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लें, पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब कर लें, मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर लें, इसराइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम न करे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक गुमराह हकायत के हामिल इंसान। डॉक्टर इसरार कौन है? डॉक्टर इसरार की क्या हैसियत है इसके बारे में? वो अल्लाह उसके नबी वाला दीन उनके पास नहीं है, लिहाजा उनका सितंबर 2003 में एक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो यूनाइटेड नेशंस में एक मैप दिखाता है ग्रेटर इजराइल का, जिसमें पूरा पैलेस्टीन, लेबनान, जॉर्डन था, सीरिया का 70%, इराक का आधा, कुवैत का हिस्सा, सऊदी अरब का हिस्सा, इजिप्ट का हिस्सा, टोटल 8 कंट्रीज के ऊपर ये बना था। पूरी मुस्लिम दुनिया ने देखा, लेकिन सब खामोश थे। लेकिन एक ऐसा स्कॉलर था जिसने 20-25 साल पहले बोला था कि ऐसा होगा। जब भी वो इजराइल की बात करते, ग्रेटर इजराइल को मेंशन करते। ग्रेटर इजराइल बनेगा। ईरान के ऊपर तो अटैक कर रहे हैं, लेकिन लेबनान को भी कब्जा कर रहे हैं। लेबनान को तहस करेंगे। इन्होंने अरबों के बारे में बोला था। आलम अरब से अब कोई उम्मीद नहीं। और हमने क्या देखा 2020 में यूएई, बहरान, मोरक्को ने इब्राहिम एकॉर्ड्स को साइन किया। We want to be part of the Ibrahim Accord. उन्होंने बोला था एक बड़ी वॉर होगी। मार्च 2026 अमेरिकन फोर्स ईरान उनका टारगेट है, टारगेट नंबर 1। ईरान पे हमला किया और अपने सोल्जर्स को ये बोल रहे हैं ये एक होली वॉर है। इसमें आर्मगेडॉन कहा गया है। अब ये सब कोई प्रिडिक्शंस नहीं है, ये इस वक्त दुनिया का करंट इवेंट है। लेकिन जब डॉक्टर इसरार जिंदा थे, दुनिया ने उनकी इज्जत नहीं की। जब डॉक्टर इसरार साहब जिंदा थे, हमें उनकी कदर ही नहीं की। अभी मरने के इंतकाल होने के बाद हम सुनते हैं वो जो उन्हें 20 साल पहले कहा वो अभी तैयार है। वो फिरका बंदी के खिलाफ बोलते, वतन परस्ती के ऊपर सवाल उठाते। मुसलमानों, तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुस्लिमीन रखा है, पहले भी और अब भी। यहाँ तक कि मौलवियों ने तो उनके ऊपर फतवे लगा दिए। डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक गुमराह हकायत के हामिल इंसान। डॉक्टर इसरार कौन है? डॉक्टर इसरार की क्या हैसियत है इसके बारे में? वो अल्लाह उसके नबी वाला दीन उनके पास नहीं है, लिहाजा उनका दर्स सुनने से इज्तिनाब किया जाए। काफिर तक कहा गया उनको। वो बोलते थे आप कुरान को खुद क्यों नहीं सीखते। इकबाल लिखते हैं वो थे जमाने में मोअज़्ज़ज़ मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीके कुरान हो। याद रखो, ये जंग आपको पसंद हो या पसंद ना हो, इस जंग का असर आपके घरों के सिर्फ चूल्हों तक नहीं पहुंचेगा। एक तवील मुद्दत के बाद इसका असर आपके तालीमी इदारों तक पहुंचेगा। इसलिए कुरान की दलील सुने। सूरह रूम की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम गुलिबतुर रूम फी अदनल अर्दि वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदइ सिनीन। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 सुपर पावर ताकतें थी। एक तरफ थे रोमन एम्पायर, दूसरी तरफ थे पर्शियन एम्पायर। इन दोनों में आपस में झड़पें होती रहती थी। कभी रोमन्स पर्शियंस पर हमला करते थे, कभी पर्शियंस रोमन्स पर हमला करते थे। 616 ईस्वी में दोनों में एक बड़ी जंग हुई और
पर्शियन अंपायर ने रोमन अंपायर को हरा दिया और रोमन्स की बहुत सी जमीन के ऊपर कब्जा भी कर लिया। अब पर्शियंस जो थे ये आतिश परस्त थे, आग की पूजा करते थे। उसके बिलमुकाबिल रोमन्स जो थे, रोमन अंपायर के अंदर जो लोग थे वो अहले किताब थे, क्रिश्चियंस थे। जब ये खबर मक्का मुकर्रमा पहुंची तो कुफ्फार मक्का, खास तौर पर कुरैश, ये खुशियां मनाने लगे और दूसरी तरफ मुसलमान मायूस हो गए। कुफ्फार मक्का इससे फाल निकाल कर ये कहने लगे कि जिस तरह पर्शियन अंपायर ने अहले किताब रोमन्स को हराया है, बिल्कुल इसी तरह हम जो मुशरिकीन हैं हम भी मुसलमानों से जंग कर इनको हराएंगे और इनको मक्का मुकर्रमा से बाहर निकाल देंगे। उस वक्त सूरह रूम की आयतें नाजिल हुई, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि वहुम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून, कि अभी तो रोमन एम्पायर हार गया है लेकिन अभी कुछ ही सालों में रोमन्स जो है पर्शियंस को हरा देंगे। फी बिदअ सीन, कुछ ही सालों की बात है, और रोमन एम्पायर को विक्ट्री मिलेगी। अब आप गौर करें कि रोमन्स का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? वो तो मुसलमान भी नहीं थे, वो तो तस्लीस यानी ट्रिनिटी के अकीदे के कायल थे, यानी पक्के मुशरिक थे, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे, नाउजुबिल्लाह। लेकिन रोमन्स के हारने की वजह से मुसलमान गम महसूस कर रहे थे। सहाबा की जमात ये चाहती थी कि रोमन्स जीत जाएं। रोमन्स के लिए सहाबा के अंदर हमदर्दी पाई जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये नहीं कहा कि एक बातिल दूसरे बातिल से टकरा रहा है तो तुम क्यों उनसे हमदर्दी जता रहे हो, दोनों को लड़कर मर जाने दो, जिस तरह की यूसुफ वापी जैसे जाहिल लोग बात कर रहे हैं। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नहीं कहा? क्योंकि इस्लाम एक प्रैक्टिकल मजहब है जो पूरी दुनिया के लिए आया है। इस तरह की जियोपॉलिटिक्स का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और जब पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा तो मुसलमानों पर और इस्लाम पर भी उसका असर पड़ेगा। अब जब ये आयत सूरह रूम की नाजिल हुई, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका शान नुज़ूल बयान किया है। मैं आपको वो हदीस बताना चाहता हूं, उसको जरा गौर से देखिए। ये जो येलो कलर का निशान है इसको देखिए क्या लिखा है हदीस में, फकानत फारस यौम नज़लत हादिहिल आया काहिरीन लिर्रूम, कि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई पर्शियन अंपायर ने रोमन अंपायर को हरा दिया था। और आगे जो हदीस का टुकड़ा है ना वो मैं बताना चाह रहा हूं। आगे लिखा है वकानल मुस्लिमून युहिब्बून ज़ुहूर अर्रूम अलैहिम, लेकिन मुसलमानों की जमात से कौन मुराद है? सहाबा थे। मुसलमानों की जमात ये चाहती थी, युहिब्बून, ये चाहती थी कि रोमन्स ये पर्शियंस पर गालिब आ जाए, रोमन्स पर्शियंस को हरा दे, सिर्फ अदनासी मुशाबहत की वजह से। क्या मुशाबहत थी अदनासी? कि जिस तरह मुसलमान अहले किताब हैं, रोमन्स भी अहले किताब थे, हालांकि पक्के मुशरिक थे। तो जब इस अदनासी मुशाबहत की वजह से सहाबा का ये तर्ज अमल रहा है तो इस जंग के अंदर क्या हम अदनासी मुशाबहत की वजह से शियों के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं कर सकते या उनका साथ नहीं दे सकते किसी तरीके से? अगर कोई साथ दे और अकाबरीन इस बात को समझाने की कोशिश करे तो अकाबरीन पर लानतान करना शुरू कर दिया लोगों ने। अकाबरीन को कोई खिंजीर कह रहा है, कोई बदमाश कह रहा है, कोई उन पर गाली गलोच कर रहा है। इसीलिए यूसुफ वापी जैसे जाहिलों से मेरी गुजारिश ये है कि आप निरे जाहिल हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, इनकी जूतियों के धूल के बराबर भी नहीं है। इसलिए अपने मुतक़िदीन में अपनी जहालत फैलाना बंद करो।